Good morning, students. In plant maintenance and safety. Continue the chapter number 2, rear and corrosion and their prevention. In previous session, we have seen the what is the lubrication and what are the lubricants used for the different applications. In this session, we see the methodology for the lubrications. यानी लुब्रिकेशन करने के लिए कौन से मेथड्स यूज होते हैं. So there are total 8 types of lubrication. Screw down grease cup, then second is the pressure grease gun, third is the splash lubrication, fourth is gravity lubrication, fifth is wick feed oiler, sixth is side feed oiler, seventh is ring lubrication, and eighth is centralized lubrication. So ये 8 तरह से हम lubrication कर सकते हैं जिससे मशीन कंपोनेंट का रियर कम हो और दोनों मेटिंग सरफेस है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में ना आए और उनके बीच में एक फिल्म लेयर बन जाए. सबसे पहला स्क्रू डाउन ग्रीस कप. सो जो छोटी मेथोडोलॉजी है यानी साइकिल के पार्ट से स्विंग मशीन से यानी सिलाई की जो मशीन है उसके अंदर जो हम ऑयल कैन से लुब्रिकेशन करते हैं दैट इज़ द स्क्रू डाउन ग्रीस कप मेथोडोलॉजी. और हैंड प्रेशर या ऑयल कैन की मदद से भी हम ये लुब्रिकेशन कर सकते हैं. The lubricating oil is supplied manually to the machine using oil filled can. ठीक है. Greasing can be done by using screw down type grease cup shown in the figure. And the lid of this cup is screwed on the create the pressure on the grease. Under the effect of it, the grease enters between the rubbing surfaces and lubricating them. जैसे जैसे स्क्रू डाउन होता जाएगा और जो ग्रीस कप है उसके अंदर से ग्रीस निकलती जाएगी और जो भी सरफेसेस है कि जहाँ पर हमें लुब्रिकेशन करना है वहाँ पर धीरे धीरे ग्रीस जैसे फिगर में दिखाया है उस हिसाब से एंटर होती जाएगी और एक जो कंपोनेंट है मशीन कंपोनेंट उसके अंदर लुब्रिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा. So this is a very basic methodology or number 1 it's called the screw down grease cup methodology. ठीक है. नंबर 2 प्रेशर ग्रीस गन यानी हाइड्रोलिक प्रेशर की मदद से मैकेनिकल प्रेशर की मदद से. ठीक है. जब हम ग्रीसिंग करते हैं मेटल पार्ट के अंदर लुब्रिकेशन करते हैं तो उसको प्रेशर गन ग्रीस गन मेथोडोलॉजी कहा जाता है. रेगुलर इंटरवल्स द ग्रीस कप lid is screwed on the effect the automatic greasing under pressure in this method. So example of this type of greasing is the grease filled in the between the shaft and bushing of the floor mill and bearing of the motor, where based on these methods grease cups are provided at the time of manufacturing the equipment. जब भी इक्विपमेंट कोई भी है उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तभी कप के अंदर उसको प्रेशराइज ग्रीस बिठाया जाता है. जैसे कि फ्लोर मिल की हम शाफ्टिंग की बात करें, बुशिंग की बात करें या जो उसके अंदर मोटर यूज होती है उसका बेरिंग की हम बात करें. ठीक है. तो जो प्रेशर से अंडर ग्रीसिंग कप के अंदर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ग्रीस बिठाई जाती है तो उसको ये मेथोडोलॉजी के अंदर इंक्लूड किया जाता है. The figure shows and the pressure grease guns. In these types of grease guns handle or lever, the grease pump is pressed to the pump to grease under the pressure for greasing at desired points. The pressure is applied in these guns by the handle, hydraulic system or lever. Here see in this figure that is a handle type pressure gun, then the automatic hydraulic type pressure gun, and third one is the lever type pressure gun. तो हैंडल जो है उसकी मदद से रोटेशन करने से
प्रेशर क्रिएट होगा और लुब्रिकेशन होगा। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक टाइप प्रेशर गन है, यानी पंपिंग की मदद से प्रेशर क्रिएट किया जाएगा और बाद में लुब्रिकेशन होगा। और यहाँ पर लीवर मैकेनिज्म दिया है, अप डाउन लीवर मैकेनिज्म की मदद से हम प्रेशर ग्रीस गन कर सकते हैं। And the use of handle hydraulic system and lever for creating the pressure on the grease in these grease guns as shown in figure. So this is a powerful pressure guns, and through this methodology we can insert the grease through pressurize. So it is called the pressure grease gun methodology. Next is this diagram we have seen. Third is the splash lubrication. So the oil mist system is recently invented. In this system, one by one drop of the oil is allowed to fall in the low pressure air. So this oil, while circulated on the working surfaces of machines, it provides a wetting effect and supplies the oil for the purposes of lubrication. यानी जो ऑयल है उसको पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट किया जाए और उसको फिर प्रेशराइज एयर के साथ कंपोनेंट के अंदर भेजा जाए। तो ऐसा जब कोई सिस्टम बनता है तो उसको स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम कहते हैं। और उसके अंदर ऑयल के पार्टिकल्स जब एयर के साथ मिक्स होते हैं तो एकदम बारीक बन जाते हैं, अप्रोक्सीमेटली 12 to 15 माइक्रोमीटर। So and it provides a wetting effect and supplies the oil for the purpose of lubrication. The splash lubrication system is employed for the lubricating the piston rings, cylinder balls, gudgeon pin and crank of the IC engine and air compressors. तो ये सभी जो पार्ट्स हैं उसके अंदर ऑयल के साथ एयर को मिक्स करते हुए लुब्रिकेशन किया जाता है, इसको स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम कहा जाता है। The flyweights of the rotating crankshaft is dipping in the air in the oil in the reservoir and splashes the oil while leaving the oil. Thus the oil is splashed on the cylinder balls and stick on the provides the lubrication. So oil scraper rings scrape the excess oil from the cylinder ball and send the oil back into the crankcase reservoir. So in this diagram we see the methodology of the splash lubrication. Here while the rotation of crank that is in sump lubricating oil, so automatically oils are in sprinkle form, in mist form is creating and splashing is done. So this is the called the splash lubrication. So this type of we use in the cylinder walls, piston rings, gudgeon pin and crank of IC engine and also in air compressors. Fourth is gravity lubrication. So gravity lubrication system is also very important. Due to the gravitation force, the oil is going on in the components, and due to gravity force, automatically circulation is done. So the lubrication of bearings are affected by using the force of gravity, and the valve mechanism in diesel engine is lubricating by this method. So ये डीजल इंजन जो है उसके अंदर वाल्व मैकेनिज्म जो होता है, इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व की जो मैकेनिज्म होती है उसके अंदर जो लुब्रिकेशन करने का होता है वो ये ग्रेविटी लुब्रिकेशन की मदद से होता है। यानी रिजर्वोयर और रिजर्वोयर से पंप की मदद से भेजा जाता है और फिर वाल्व वगैरह इनबिल्ट करने से जितना ऑयल जिस हिसाब से जरूरी है उतना ग्रेविटी की मदद से उसमें इंसर्ट किया जाता है। तो दिस कॉल्ड द ग्रेविटी लुब्रिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट इज विक फीड ऑयलर. So the diagram is shown here. A wick fit oiler, it's a ton, then oil sump, thin or wire rope, then wick and the cup. So these are the basic 5 components of the wick fit oiler.
The oil is reaching and entering in the bearings with the help of wick under the combined effect of capillary and gravity. ग्रेविटी और कैपिलरी की मदद से विक का यूज़ करते हुए बेरिंग के अंदर जब ऑयलिंग किया जाता है, लुब्रिकेशन किया जाता है, तो ये मेथोडोलॉजी का यूज़ किया जाता है. Lubrication of the main bearing in the steam engine and spindle bushing of engine lathe are lubricating using wick feed oiler. जो लेथ होती है उसके अंदर जो बुशिंग होती है इंजन के अंदर, उसके अंदर और स्टीम इंजन की जो मेन बेयरिंग होती है, ठीक है, उसके अंदर ये मेथोडोलॉजी से लुब्रिकेशन किया जाता है. इट्स कॉल्ड द विक फीड ऑयलर सिस्टम. Then the number 6 is the side feed oiler. So the side feed oiler, the diagram is shown at the neat valve and oil reservoir. So it is also on the drop feed oiler, drop wise. और हमारी जो लुब्रिकेशन सिस्टम है वो एक्टिव होती है और जो ऑयल है वो फीड होता है. In this oiler, the oil coming out of the hole is controlled by the needle. The frequency of dropping oil can be seen from the side glass. एक साइड ग्लास दी जाती है, ठीक है, जिसके अंदर से हम देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंटली ऑयल ड्रॉपिंग हो रही है और ड्रॉप होते हुए लुब्रिकेशन होता है. This automatic system is used to lubricate the grinding machining spindle and lubrication of piston and cylinder in horizontal diesel engine is also done in using this methodology. So this is automatic system, is also called used in grinding machine spindle and also in piston cylinder arrangement of horizontal diesel engine. इसके अंदर भी इसका यूज होता है और ड्रॉप वाइज ड्रॉप जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है लोअर पोर्शन में, ठीक है, और नीडल की मदद से, नीडल वाल की मदद से लुब्रिकेशन होता है. और इसको जो विजिबल है उसको हम साइड ग्लास से देख सकते हैं. सातवां है रिंग लुब्रिकेशन. सो रिंग लुब्रिकेशन इज ऑल्सो वन इम्पोर्टेंट मेथड which is shown in diagram. One shafting, one ring in oil reservoir. So the ring lubrication is used to lubricate the main bearing of horizontal gas engine. A ring is of diameter double than the shaft diameter is always the remaining the clip in the oil in the reservoir. बट नेचुरल है, शाफ्टिंग के डायमीटर से दुगना होगा तो ही पूरा लुब्रिकेशन अच्छी तरह से हो पाएगा, इसलिए वो इस तरह से रिंग का डायमीटर जो है वो शाफ्ट के डायमीटर से 2 गुना होता है एंड उसको जो है ऑयल रिजर्वर के अंदर क्लिप किया जाता है. दिस रिंग इज स्लोली रोटेटिंग अलॉन्ग विद द रोटेटिंग शाफ्ट. जैसे जैसे शाफ्ट घूमना स्टार्ट करेगा वैसे वैसे वो रिंग भी धीरे धीरे घूमना स्टार्ट होगी. Thus the centrifugal force is developed on the ring. उसी तरह से केंद्रगामी जो फोर्स है वो डेवलप होगी रिंग के ऊपर. एंड अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द ऑयल इज एंटरिंग इनटू द बेरिंग फॉर द लुब्रिकेटिंग. जैसे जैसे ये रोटेशन करना स्टार्ट करेगा वैसे वैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होगा और दूसरी कैविटी की वजह से ऑयल जो है वो धीरे धीरे बैरिंग के अंदर लुब्रिकेशन के लिए एंटर होगा. तो ये मेथोडोलॉजी को रिंग लुब्रिकेशन मेथोडोलॉजी कहते हैं. और इसके अंदर जो रिंग का डायामीटर है जैसे हमने डिस्कशन किया वो शाफ्ट की जो डायामीटर है, ठीक है, उससे 2 गुना होगा और जो हमारी रिंग है उसको हमारा जो रिजर्वायर है ऑयल रिजर्वायर उसके साथ क्लिप किया जाएगा. तो दिस इज नोन एज अ रिंग लुब्रिकेशन. नेक्स्ट इज द सेंट्रलाइजेशन लुब्रिकेशन सिस्टम कि एक ही जगह पे आपकी ऑयल रिजर्वर है और एक पूरी पंप की मैकेनिज्म है, ठीक है, और वहाँ से पूरी जो आपकी सिस्टम है वहाँ पर लुब्रिकेशन होता है तो उसको सेंट्रलाइजेशन लुब्रिकेशन कहते हैं. जैसे मॉल वगैरह में हम जाते हैं तो
थिएटर में जाते हैं, मल्टीप्लेक्स में जाते हैं, तो एक सेंट्रलाइजेशन एसी सिस्टम होता है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, और फिर सभी जगह पे कूलिंग डक्ट थ्रू पहुंचता है। तो वैसे ही ये लुब्रिकेशन का है कि रिजर्वोयर से पंप की मदद से सेंट्रलाइजेशन उसको एक्टिव किया जाए और बाद में जहाँ पर जितने भी मशीन कंपोनेंट्स पार्ट्स हैं वहाँ पर उसको भेजा जाए। यहाँ पर एक ड्यूअल और पैरेलल लाइन दिखाया गया है और दूसरा सिंगल लाइन का सेंट्रलाइजेशन सिस्टम दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजर्वोयर पंप, ठीक है, उसके थ्रू ओपन होता है और फुल्ली रिजर्वोयर वाल्व डिलीवर्स द मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ लुब्रिकेंट इन द अल्टरनेट प्रेशर। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है पैरेलल लाइन यहाँ पर और या ड्यूअल लाइन आप देख सकते हो, एक साथ हम लुब्रिकेशन डिफरेंट मशीन कंपोनेंट्स के अंदर कर सकते हैं। वैसे ही सिंगल लाइन के साथ भी सेंट्रलाइजेशन सिस्टम देखा जाए तो रिजर्वोयर से पंपिंग प्रेशर थ्रू 4 वे वाल्व दिया है, यानी जो डायरेक्शन से जितना आप ओपनिंग क्लोजिंग से भेजना चाहते हैं मशीन कंपोनेंट के अंदर वो भेज सकते हैं। एंड आफ्टर द लास्ट वाल इन सीरीज हैज डिलीवर्ड इट्स चार्ज ऑलरेडी द रेडी सीक्वेंस इन द रिजर्व रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। तो ये पूरी जो सिस्टम होती है कि एक जगह से सभी कंपोनेंट में पंप थ्रू प्रेशराइज वाल्व मैकेनिज्म से लुब्रिकेशन किया जाए, उसको सेंट्रलाइज लुब्रिकेशन सिस्टम कहते हैं। So in this method the lubricants oil or grease is pumped from the reservoir and sent under the pressure, जैसे हमने डिस्कस किया। To lubricate the many bearings and bushings, in this method for the pumping the lubricant more than the work one gear pump is used। बहुत सारी जगह पे चाहिए, प्रेशर भी क्रिएट करना है तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे गियर पंप यूज होते हैं, लेकिन एक टाइम पे हम अच्छी तरह से सब जगह पे लुब्रिकेशन कर सकते हैं। मीन्स यूज द मैनी बियरिंग्स एंड bushings। The lubricant is circulated in a closed circuit after increasing its pressure by the pumps. So extra pump is kept ready for the standby operation. In this method, clearing, cooling and feeding of the oil is automatic. So lubrication of diesel engines and bearings of a rolling mill are the examples of this application of this method। ठीक है, डीजल इंजन के अंदर जो लुब्रिकेशन होता है, रोलिंग मिल जो होती है उसके अंदर जो बैरिंग्स होते हैं उसके अंदर जो लुब्रिकेशन होता है वो सभी ये सेंट्रलाइजेशन मेथड से होता है। सो refer this session, understand the different methodology of lubrication system and review this question and list the lubrication methods which are total 8 and explain any three in detail and write down and post your these answers in Google Classroom। Thank you, happy learning।